السلام علیکم، آپ کا اپنا ایسٹرولوجر رضا عسکری آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے 1 جون سے لے کے 8 جون تک یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ چلیے آغاز کرتے ہیں، اور ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے برج حمل سے لے کے برج سنبلا تک۔ چلیے جی، برج حمل والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ آپ کے 5ویں گھر میں مریخ موجود ہے، اور زہرہ بھی اس مہینے جون میں 5 تاریخ کو برج اسد میں داخل ہو جائے گا۔ آغاز ہفتے کا قمر عقرب سے ہوگا، اور تقریباً 1، 2 اور 3 تاریخ کی صبح تک قمر عقرب کے حالات ہوں گے، جس کی وجہ سے معاملات خاصے الجھ سکتے ہیں، کیونکہ قمر آپ کے 4تھے گھر کا حاکم ہو کر 8ویں گھر عقرب کے اندر نیگیٹو ہوتا ہے، اور یہ نیگیٹیوٹی آپ کو ڈپریشن میں اور مختلف قسم کے وہم وسوسوں میں مبتلا کر سکتی ہے۔ قمر عقرب کے ان ایام کے درمیان میں آپ چاول کا صدقہ ضرور دیں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ کسی بھی طور پر کوئی ڈپریشن یا وہم وسوسوں کا شکار نہ ہوں۔ دوسری بات، ہم چلتے ہیں جناب اس وقت آپ کے ستاروں کے سیگمنٹ کی جانب۔ تو برج حمل والوں کے لیے 5ویں گھر میں دوسرے کا حاکم اور پہلے گھر کا حاکم اکٹھا ہوگا، اور یہاں ان دونوں کی موجودگی خاصا سحر انگیز وقت، اچھا وقت برج حمل والوں کے لیے لا رہی ہے۔ ایسے تمام برج حمل والے افراد جو پیار، محبت اور عشق کی امید لگائے بیٹھے ہیں، یا ان کی کسی بھی طور پر اپنے محبوب یا محبوبہ یا اپنے لور سے کسی قسم کا کوئی انبن یا پرابلم ہو گیا ہو، تو یہاں پر یہ ستاروں کی موجودگی آپ کو بہت اچھا ٹائم دینے والی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے ناراض دوستوں میں آپ کے محبوب اگر ناراض ہوں، آپ کے لور سے کوئی ناراضگی ہو، تو یہاں پر آپ کو بہت اچھا ٹائم ملنے والا ہے، اور یہ ناراضگیاں دور ہونے والی ہیں۔ یاد رکھیے گا، زحل آپ کے 12ویں گھر میں ہے، تو ایسے تمام حمل افراد جن کا قمری برج حمل ہے وہ 67 میں ہے، انہیں محتاط رہنا ہوگا۔ خصوصاً اس قسم کی کوئی بھی بات اپنے کسی بھی دوست و احباب سے شیئر نہ کریں جو آپ کی کمزوری ہو، اور جس کی بنیاد پر کوئی بھی دوست یا کوئی بھی فرد آپ کو بلیک میل کر سکتا ہو۔ باقی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قمر کا جو دورانیہ ہوگا وہ اس ہفتے میں آپ کے 8ویں، 9ویں اور 10ویں گھر میں رہے گا۔ یہاں یاد رکھیے گا، 8ویں گھر میں بھی قمر اچھا نہیں ہوگا، 9ویں گھر میں کچھ درمیانہ ہوگا، اور پھر 10ویں گھر میں بھی قمر اچھا نہیں ہوگا۔ تو کام، کاروبار، قسمت اور اس کے لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کو کوئی خاص اچھا وقت دینے والا نہیں ہے۔ اس میں آپ نے بہتر یہ ہے کہ تمام حمل افراد سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کم و بیش چاول کا صدقہ لازمی دیں، اور اپنے والدین کی اور اہل خانہ کی صحت اور طبیعت کا لازمی خیال رکھیں۔ چلتے ہیں جناب ہم اگلے برج ثور کی جانب۔ برج ثور یاد رکھیے گا دوسرا برج ہے۔ برج ثور کا مالک ستارہ زہرہ ہے، جو 5 جون کو 4تھے گھر برج اسد میں داخل ہوگا۔ 4تھے گھر برج اسد میں پہلے سے ہی 12ویں گھر اور 7ویں گھر کا حاکم ستارہ مریخ موجود ہے، تو یہاں یاد رکھیے گا کہ 4تھے گھر میں زہرہ اور مریخ کا قیام گھر کے اندر کسی بھی طور پر آپ کو منگنی، شادی یا کسی رشتے کی آمد یا کسی رشتے کی بات چلانے کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت اچھا اور موزوں رہے گا، کیونکہ آپ کے لگن کا، آپ کے پہلے گھر کا اور 7ویں گھر کا حاکم دونوں ستارے زہرہ اور مریخ آپ کے 4تھے گھر میں ہوں گے۔ تو ایسے تمام ثور افراد جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کی یہ ہفتہ یہ سمجھ لیجئے کہ
आपकी शादी ब्याह के लिहाज से मरकज़े गुफ्तगू रहेगा और आपके अहल खाना में आपकी शादी और अज़दवाजी ज़िंदगी बनाने के लिहाज से बातें होंगी। दूसरी बात ये कि ज़ोहरा आपके ज़ायचे में छठे घर का हाकिम भी है, जो कि चौथे घर के अंदर अच्छी कंडीशन में होगा, और छठे घर का हाकिम जब चौथे घर में हो तो आपको मुलाजमत और मुलाजमत पेशा सौर अफराद को यहाँ पर बहुत अच्छे औकात मिलने वाले हैं और उनकी घरेलू और जो निजी ज़िंदगी है उसमें बेहतरी आने वाली है। चौथे घर में जब भी कभी ज़ोहरा और मरीख इकट्ठे होते हैं तो याद रखिएगा, ज़ोहरा तज़य्युनो आराइश मीन्स ये समझ लीजिएगा रेनोवेशन जिसको हम कहते हैं, घर की रेनोवेशन, कार गाड़ी की रेनोवेशन, मोटरसाइकिल या बाइक जो भी आप सवारी रखते हैं उसकी रेनोवेशन के हवाले से यहाँ इन दोनों सितारों का क़याम खासा सहर अंगेज़ और अच्छा वक्त आपको देगा। मोहतात रहिएगा। आपके सातवें घर में यकम, 2 और 3 को कमरदार अकरब होगा। सातवें घर में कमरदार अकरब होने की वजह से पहले, दूसरे और 3 जून तक आपने किसी भी किस्म की शादी और अज़दवाजी मामलात के लिहाज से या मंगनी के लिहाज से कोई बात नहीं चलानी है, और अगर कोई बात चल रही हो तो आप बेहतर ये है कि इन बातों को फ़िलहाल इन 3 दिनों के लिए पोस्टपोन कर दें। आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कमर आपके 7वें, 8वें, 9वें घरों में गर्दिश करेगा। 8वें घर, 8वें, 9वें, 10वें, 7वें, 8वें, 9वें घर में गर्दिश करेगा। 7वें घर में कमर का वबाल होगा, 8वें घर में कमर कदरे बेहतर होगा और 9वें घर में कमर फिर कमज़ोर हो जाएगा। कमर बुनियादी तौर पर आपके तीसरे घर का मालिक सितारा है और तीसरे घर का मालिक सितारा होकर कमर जब भी कमज़ोर होता है तो आपके ताल्लुकात को ख़राब करता है, आपके ताल्लुकात में किसी किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इन दिनों में आप चावल या किसी भी वाइट चीज़ का सदका, दूध का सदका, सफ़ेद कपड़े का सदका देना आपके लिए खासा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं जनाब बुर्ज जौज़ा की जानिब। याद रखिएगा, बुर्ज जौज़ा का मालिक सितारा अतारद है और अतारद इस वक्त अच्छी हालत में पहले घर में मौजूद है। अतारद वालों के लिए ये हफ्ता खासा गहमा गहमी का रहेगा और खासी इसमें उनकी गुफ्तगू के लिहाज से, मिलनसारी के लिहाज से, मिलने जुलने के लिहाज से उन्हें बड़ा बिजी वक्त गुजारना पड़ेगा। 5 जून को मरीख उनके तीसरे घर में, बुर्ज जौज़ा वालों के तीसरे घर में दाखिल हो रहा है, जहां ऑलरेडी मरीख पहले से मौजूद है, और ज़ोहरा 5 जून को यहाँ पर तीसरे घर में दाखिल हो रहा है। ज़ोहरा जो कि आपके दूसरे घर में मौजूद था, अब तीसरे घर में आने के बाद ज़ोहरा की कैफियत अच्छी हो जाएगी। ज़ोहरा बुनियादी तौर पर आपके ज़ायचे में 12वें घर बुर्ज सौर का मालिक है, और जबकि आपके 5वें घर बुर्ज मीज़ान का मालिक है। 5वें और 12वें का मालिक जिस वक्त तीसरे घर में क़याम करता है तो आपके अपने मिलने जुलने वालों के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में, टाइम सर्व करने में आपको खासे अच्छे मौके मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये भी वजाहत करता चलूँ कि मरीख और ज़ोहरा सैर व सियाहत को भी फ़रोग़ देते हैं। यहाँ पर मरीख और ज़ोहरा दोनों का तीसरे घर में होना आपको किसी करीबी सफ़र से जो है वो दरपेश आ सकता है। ये भी मुमकिन है कि छुट्टियाँ हो रही हैं, मौसम सरमा की, मौसम गर्मा की, गर्मी की छुट्टियाँ हो रही हैं, तो ऐसा मुमकिन है कि आपको फैमिली के साथ कहीं आउट ऑफ सिटी या किसी करीबी जगह पर पार्क जो है वक्त गुजारने के लिहाज से या सैर व सियाहत के लिहाज से आपको सफ़र दरपेश आए। याद रखिएगा, तीसरे घर के अंदर ज़ोहरा 12वें घर का और 5वें घर का मालिक होकर आपको खेलों की जानिब, सकाफ़त की जानिब और इसके साथ साथ एंटरटेनमेंट की जानिब भी रग़बत देगा। तो इन दिनों में आप अपने निजी वक्त में से कुछ टाइम निकाल करके लाजमी अपने बच्चों के साथ सैर व सियाहत की जानिब निकले। इससे फैमिली में बहुत अच्छा असर पड़ता है।
पहली, दूसरी और तीसरी ये 3 दिनों में कमर दर्द अकरब रहेगा। याद रखिएगा 1 जून, 2 जून और 3 जून कमर दर्द अकरब आपके छठे घर में होगा। छठे घर में अकरब में कमर की मौजूदगी, कमर जो कि आपके दूसरे घर का मालिक सितारा है, तो आपको यहाँ पर माली तौर पर अखराजात में इजाफा भी होगा। मुमकिनात में से है कि आपको अपने अखराजात को मेंटेन करने के लिए बहुत से अफराद को छोटे मोटे कर्ज़ों की जानिब भी जाना पड़ सकता है। ताहम याद रखिएगा किसी बड़े कर्ज़े में फंसने की कोशिश मत कीजिएगा, वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है और ये मुश्किलात आगे चल के आपके लिए तकलीफ का बायस बनेंगी। बुर्ज जोधा वालों के 7वें और 10वें का मालिक सितारा मुश्तरी जो है वो ऑलरेडी इस वक्त 12वें घर में है और 12वें घर में रहते हुए आपको पुरसुकून नींद और एक जो है ख्वाब और अच्छे ख्वाबों की जानिब लेके जा रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर मुश्तरी का क़याम आपके 12वें घर में और फिर ज़ोहरा का क़याम आपके तीसरे घर में, ये मुश्तरी और ज़ोहरा का जो इस तरह से नज़र बनाना है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आपको दौरान सफ़र आ सकती हैं। तो किसी भी किस्म के कागजात या अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात अपने साथ ज़रूर रखें ताकि आपको दौरान सफ़र किसी किस्म के मसाइल दरपेश ना हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुर्ज सरतान के हवाले से। तो याद रखिएगा बुर्ज सरतान चौथा बुर्ज है और बुर्ज सरतान वाले बड़े ही मतलूब मिजाज और इनके अरूज ज़वाल इनकी ज़िंदगी का खासा रहते हैं। आपका ज़ाती सितारा कमर 1 माह में 29 दिनों के अंदर तमाम 12 बुर्जों का सफ़र तय कर लेता है और इन 29 दिनों में शर्फ, औज, हुबूत, हजीज़, खजीज़, तरह, फरा और इस तरह की तकरीबन 8 मनाजिल ऐसी होती हैं, 8 मकामात ऐसे होते हैं, 8 बुरूज ऐसे होते हैं जहाँ पर कमर को अरूज भी होता है और ज़वाल भी होता है। याद रखिएगा कमर जब जब अकरब और जद्दी में आता है तो आपके लिए प्रॉब्लम्स लेकर आता है और यहाँ मैं आपको वजाहत करता चलूँ कि अकरब कमर वालों के लिए 5वां घर है और जद्दी जो है आपका 7वां घर है। 1 जून से लेकर के 7 जून तक कमर की गर्दिश 5वें, 6ठे और 7वें घरों में रहेगी। तो कमर यहाँ पर कोई ख़ास अच्छी कंडीशन आपको नहीं देगा। मुमकिन है कि आपकी शख्सियत में, आपकी ज़ात में कुछ प्रॉब्लम्स आएँ या आपके बच्चों के साथ या आपकी मिलने जुलने वालों के साथ ताल्लुकात में किसी किस्म की खराबियाँ पैदा हों। मोहतात रहिएगा और इन तारीख़ों में ख़ुसूसन 1, 2 और 3 की दोपहर तक ये जो आपके तकरीबन 56 घंटे बनते हैं कमर के अकरब में क़याम के दरमियान में आपको किसी भी किस्म के मोहब्बत, प्यार, जुआ, सट्टा या लॉटरी की जानिब नहीं जाना चाहिए। आप नुकसान उठाएंगे। अगर स्टॉक मार्केट से आप मुंसलिक हैं तो स्टॉक मार्केट में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाली। तो इस हफ्ते के इब्तदाई 3 अयाम और आखिरी 2 अयाम में आपको इन मामलात में खासी मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। याद रखिएगा इस वक्त मुश्तरी बुर्ज सौर में आपके 11वें घर में है। मुश्तरी का 11वें घर में क़याम और 9वें घर में ज़ोहल का क़याम आपको आने वाले वक्तों में दूररस असरात देगा और ख़ुसूसन आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात की तकमील के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुश्तरी की 11वें घर में मौजूदगी बड़ी अच्छी है। ताहम आपके जायचे के हवाले से और इस हफ्ते के हवाले से बात अगर मैं करता हूँ तो आपके 7वें घर और 5वें घर में जो कमर को मुख्तलिफ़ किस्म की नहुसतों का सामना होगा, इन के ट्रांजिट के दरमियान में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। जबकि दफ्तरी मामलात में आपको 4 और 5 तारीख को कुछ अच्छे वाक़यात पेश आएंगे
اس سے پہلے آپ کو کچھ معاملات خراب رہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد 6 اور 7 تاریخ کو بھی کچھ معاملات دفتری امور میں آپ کے خراب رہ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم برج اسد کے حوالے سے بات کریں گے۔ یاد رکھیے گا برج اسد 5واں برج ہے، اور برج اسد کا حاکم ستارہ شمس ہے، جو کہ اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو برج جوزہ میں گردش کر رہا ہے، اور برج سرطان میں اس کا داخلہ ہو جائے گا 22 جون کو، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ برج جوزہ میں آپ کے 12ویں گھر میں گردش کر رہا ہے، آپ کے 11ویں گھر میں گردش کر رہا ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس ہفتے ہونے والے ستاروں کے ٹرانزٹ کی، تو یاد رکھیے گا کہ زہرہ کا ٹرانزٹ آپ کے پہلے گھر میں ہو رہا ہے۔ یہاں پر آلریڈی پہلے سے مریخ بھی موجود ہے۔ مریخ برج اسد والوں کے لیے آپ کے ذائچے میں چوتھے گھر عقرب کا مالک ہے، جبکہ 9ویں گھر برج حمل کا مالک ہے، اور یہاں پر چوتھے اور 9ویں کا مالک ہو کر کے مریخ بہت اچھے اثرات آپ کی شخصیت پر مرتب کر رہا ہے۔ معاشرے میں عزت وقار اور اس میں بہتری محسوس ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا زہرہ جو آپ کے ذائچے میں 10ویں گھر کا حاکم ہے اور تیسرے گھر کا حاکم ہے، تو آپ کے تعلقات کو مضبوط بنائے گا۔ آپ کے کاروباری اور افسران بالا یا کاروباری رفقا کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ ان ایام میں اور ان مختلف قسم کی بہتر ایام میں آپ جو ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے وقت میں اور اچھے فیصلے کریں گے، کیونکہ اس وقت مریخ آپ کو جتنا پوٹینشیل اور جتنی قوت اور حوصلہ دے رہا ہے، اسد افراد جو ہے اپنے رکے ہوئے کام اور اپنے پھنسے ہوئے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں پر بڑی تگ و دو کر سکتے ہیں، اور ان کی تگ و دو کا بہت اچھا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ اس 1 جون سے لے کے 7 جون تک کے درمیان میں یاد رکھیے گا قمر جو آپ کے 12ویں گھر کا حاکم ہے، وہ آپ کے چوتھے گھر کے اندر وبال میں ہوگا، قمر کا عقرب ہوگا۔ ان ایام میں 1، 2 اور 3 تاریخ کی دوپہر تک آپ کو اہل خانہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں بھی کرنی ہوں گی، جبکہ کسی بھی قسم کی ایسے معاملات یا اہل خانہ کی صحت میں اگر کسی قسم کی خرابی رونما ہوتی ہے تو آپ پہلی فرصت میں اس پہ توجہ دیجیے گا۔ خدا نخواستہ آپ کی والدہ کے حوالے سے یا اہل خانہ کے حوالے سے کسی قسم کا اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ جب پیش آتا ہے تو وہ آپ کو پرابلمس دے سکتا ہے یا آپ کی توجہ ہٹا سکتا ہے۔ زہرہ 10ویں گھر کا مالک، مریخ چوتھے اور 9ویں گھر کا مالک، ان دونوں کا قیام آپ کے پہلے گھر میں بڑا معنی خیز اور بڑا مثبت ہے۔ اس مثبت قیام سے آپ فائدہ اٹھائیے یہ پورا ہفتہ، اور تقریباً آپ کو میں وضاحت کرتا چلوں کہ 5 جون کے بعد جولائی کی شروع کی تاریخوں تک زہرہ آپ کے پہلے گھر میں ہی رہے گا۔ اسد افراد جو شادی کی خواہش رکھتے ہیں، جو پیار محبت کی خواہش رکھتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی نیا عشق، محبت یا کوئی ایسی صنف مخالف رابطہ ہو سکتا ہے جو ان کے لیے آگے جذباتی لگاؤ کا باعث بنے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب ہم سنبلہ کی جانب۔ برج سنبلہ جو آپ کا جس کا ستارہ عطارد ہے اور اس وقت 10ویں گھر جوزہ میں موجود ہے، اور سنبلہ والوں کے لیے میں اگر وضاحت کرتا چلوں تو سنبلہ والوں کے لیے میں یہ واضح کرتا چلوں کہ اس ہفتے کے درمیان میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اسے غور سے سنیں۔ یاد رکھیے گا زہرہ کا قیام آپ کے 12ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ زہرہ آپ کے 9ویں گھر کا مالک ہے، 9ویں گھر برج ثور کا مالک ہے، جبکہ آپ کے دوسرے گھر برج میزان کا مالک ہے۔ آپ کی قسمت اور آپ کا دھن اور دولت، اس کو آپ کے زہرہ سے دیکھا جاتا ہے۔ زہرہ کو کہ برج اسد میں اچھا ہوتا ہے، لیکن جب 12ویں گھر میں موجود ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا یہاں امیگریشن کے حوالے سے، فارن ٹرانزٹس کے حوالے سے، فارن امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے آپ کو فوائد تو دے سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا اگر کسی قسم کے حکومتی ٹیکسز یا یوٹیلیٹی بلز
इस तरह के हों तो उनकी अदायगी में आपने किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करनी है। अगर आप ताख़ीर करते हैं तो मुमकिन है आपको फ़ाइन या जुर्माना भरना पड़े, या फिर आपको किसी भी किस्म के मामला दरपेश आ सकते हैं। याद रखिएगा, मरीख भी ऑलरेडी इस वक्त 12वें घर में मौजूद है, जिसकी नज़र बराह रास्त आपके 7वें घर पर है। 7वां घर बुर्ज सुमला वालों के का 7वां घर जो है वो बुर्ज हौत होता है। बुर्ज हौत पर मरीख की निगाह जा रही है। यहाँ पर अज़दवाजी ताल्लुकात में शरीक हयात के साथ किसी किस्म की तलखी या ससुराली मामलात में कुछ मामलात ख़राब हो सकते हैं, ख़ुसूसन जब कमर की गर्दिश रकम 2 और 3 की दोपहर तक तकरीबन आपके तीसरे घर में होगी और कमर का रकरब होगा। तो इन शुरू के 2-2.5 दिनों में आपके ताल्लुकात के हवाले से आपको मामलात में ख़राबियाँ दरपेश आएंगी। ज़ोहरा और मरीख का 12वें घर में क़याम ऐसे सुमला अफराद के लिए अच्छा साबित होगा जिन्होंने किसी किस्म की कोई खुफिया शादी या खुफिया मोहब्बत रख रखी है। याद रखिएगा, उन्हें यहाँ पर अपने खुफिया तौर पे की गई शादी और अपने खुफिया तौर पर किए गए किसी भी महबूब के साथ मिलने के मौके मैसर आएंगे और तकरीबन ये पूरा माह आपका अच्छा इस लिहाज से गुजरेगा। लेकिन फ़िलहाल हम इस सेगमेंट में बात कर रहे हैं 1 जून से 7 जून तक के हवाले से, तो यहाँ पर आपको खासे अच्छे मौके मिलने वाले हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं मुश्तरी की, जो कि आपके चौथे और 7वें घर का हाकिम है और इस वक्त आपके 9वें घर बुर्ज सौर में मौजूद है, मुश्तरी की मौजूदगी बराह रास्त आपके पहले घर पर नज़र डाल रही है। याद रखिएगा, किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी और मुश्तरी का यहाँ क़याम तकरीबन आने वाले साल तक आपको बहुत सारे फ़वाइद देगा। आप अपना इनफरादी ज़ायचा बनवा कर मुश्तरी के मौजूदगी और अपने ज़ायचे विलादत में मुश्तरी की सादतों के हवाले से ज़रूर देखें, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये मुश्तरी आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और आप उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मुश्तरी की सादतें अपनी जगह, कमरदार रकब के बारे में भी मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ। याद रखिएगा, अतारद आपका जो पहले और 10वें घर का मालिक है वो तकरीबन पूरा हफ्ता 10वें घर में ही मौजूद रहेगा। आपके मुलाजमत पेशा अफराद को अपने आला अफसरान के साथ और अपने ऑफिस कुलीग के साथ अच्छा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, जबकि कारोबारी अफराद को नए मुआहदे करने, नई डीलिंग्स करने और इसके साथ साथ नए सामान खरीदारी और अपने कारोबार को वसअत देने के हवाले से मौके मैसर आएंगे। राहु और कीतु की अगर मैं बात करूं तो 16 वालों के लिए याद रखिएगा, राहु कीतु इस वक्त आपके दूसरे और 8वें घरों में मौजूद है। कीतु आपके दूसरे घर में मौजूद है, जिसकी वजह से आपके अंदर काम करने के हौसले की कमी आ सकती है। इसके लिए आप सदकात वगैरह दीजिए और अपने पैदाइशी तौर पर राहु और कीतु को मद्देनज़र रखें। ये भी आपके ज़ायचे में खासा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 8वें घर में जब राहु होता है तो ये आपको खौफ में, वहम वसवसों में और मुख्तलिफ़ किस्म की शकूक व शुबहात में मुब्तला कर देता है। और इन शकूक व शुबहात और वहम वसवसों की वजह से आप कोई बड़ी डील नहीं कर पाते या कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाते। तो इन मामलात को अपने ज़हन नशीन रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते दोबारा आपके 8 जून से लेकर 15 जून तक के ज़ायचे के हवाले से। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।